डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं क्या कर रहा हूँ और पैसा कितना मिल रहा है। ब्लैक में टिकट खरीद के पूरा झुंड मेरा दोस्तों का सनी सर की फिल्म देखने जाता था। आज सनी सर के साथ ये फिल्म करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच और बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है। विनीत जी यहीं पे लेफ्ट में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद। आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स अ ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है। सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए? जो एक बोलते हैं नजरिया जो रहा, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया क्या? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना, जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। Hello everyone, this side. Heisha here. I'm from Varinder Chawla's team. First of all, I want to say amazing trailer. Each one of you all are standing out and it's looking so good. I have to tell you, loved you in Superboys of Maligaon as well. It was Thank you. amazing. I'm actually going to start off by asking you a question first. When you do a film like Superboys of Maligaon, which is such a fabulous film and it releases in the theaters, but probably does not get there, and then you have a film like Jat, which you know is a mass entertainer. How does that feeling of arrival feel right now when you know you've done a great project and you know this one is great too, but this will reach to a larger audience as well? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। जब एक फिल्म छावा जैसी होती है, या एक फिल्म जब जाट जैसी होती है, तो वो पुराने काम जिसे लोगों ने नहीं देखा, लोग जाके रिविजिट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुंदर है कि अभी जैसे जाट का जो फर्स्ट लुक आया, टीज़र आया, अब ट्रेलर आज आ गया है, तो लोग अचानक से पुरानी फिल्मों के बारे में बात करने लगते हैं। हमेशा से मुझे ये लगता था मैं फिल्म्स कर रहा हूँ लेकिन शायद लार्जर ऑडियंस तक पहुँच नहीं रही है। ट्रू। लेकिन इस बार तो सनी सर के साथ ही हूँ। तो दूर तक जाएगी ये फिल्म। Hi, right here only. Hi. So first of all, I'm just like everyone, congratulations on the trailer. Looks fantastic, looks amazing. My question is for Randeep, of course. It's been quite a journey for you. Just like Vineet, there is so much that people go back now visiting old films whenever something pops up, which is massy and everything. You've also, as I mentioned, had a journey. When you go through these hurdles and when you have such a trajectory to look at, how do you look at your scripts that come across? And when you have a massy entertainer like Jat, and you obviously, weigh your choices. Sometimes you want to do something that speaks to you more and you don't have the financial backing to it. Here you have something which is massy, you play an antagonist. As an actor, how much do all these factors weigh in your choices? I think I have been very fortunate to do all kinds of roles in all kinds of genres and all kinds of industries, whether it's Hollywood, Bollywood. Now I'm getting a chance to work in the Telugu industry for people from there. So I think it's a big boon for me, and I think I'm very fortunate to get these opportunities. As far as choosing the roles go, I mean, it depends on where you are in life and what you're doing and what is it that you feel you need at that time. And so it keeps varying. I mean, I have done my 100% in all kinds of films. In with Jat, I think it was taking it a notch up, thanks to Gopi, who really has, I think it's one of the few times that I have not played a role and I have just blindly followed the director, and which is thing. And there's another thing that I like to do is that the more I adapt myself to the genres, the scale of the movie and the director, the more difference I'm able to cause in my performances as well as the audience acceptance. ये सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूँगा। मेरे 4 कार्ड्स होते हैं: डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं क्या कर रहा हूँ और पैसा कितना मिल रहा है। इस बार मैंने सारे कार्ड्स साइड में रख दिए बिकॉज मुझे सनी सर मिल रहे थे। इट्स ट्रू, ये सत्य है। मेरे
विनीत जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन छावा के लिए, बधाई हो। Thank you. रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड इतने सारे ब्रेक कर चुका है। आपसे जानना चाहूँगा, राइटर, पोएट और विलन, आपके 3 किरदार, 3 अलग अलग किरदार, किस तरह से देखते हो? एंड सबसे खास बात क्या होती है जब आप तीनों किरदार को एक्सप्लोर करते हो, जब बड़े पर्दे पर आती है? पोएट इतना अच्छा लोगों ने पसंद किया है, हाउ डू यू सी द विलन पार्ट? क्योंकि ये कुछ नया देखने मिलने वाला है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं ये बोलूँगा कि ये मीडियम डायरेक्टर का है, और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर कि गोपी सर ने ऐसा मुझे मौका दिया, मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था। बाकी एज एन एक्टर तो हमेशा कोशिश ये रहती है कुछ नया करूं, बस वही प्रयास किया है, और काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है छावा के लिए, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव के लिए, जाट के लिए भी उसकी वर्षा करिए एकदम छप्पर फाड़ के। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, गोपी सर, ही इज़ आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर हियर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ सवाल जो है यहाँ भी जाएं। मेरे हैं सर, लिखा है मैंने, रातों रात नहीं हुआ, ये सालों की तैयारी है, अब तो बॉक्स ऑफिस भी बोल रहा है, विनीत भाई सब पे भारी है। गिव इट अप फॉर विनीत कुमार सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप एक बार फिर से बोलिए। रातों रात नहीं हुआ, ये सालों की तैयारी है। ये रातों रात नहीं हुआ, जाट सब पे भारी है। ऑफ कोर्स विनीत भाई, कंग्रेचुलेशंस। कह रहे हैं ये साल सिर्फ आपका ही है, एंड मजा आने वाला है क्योंकि अब तक जो आपने किया है, आपकी हर एक परफॉर्मेंस को इतना सराहा गया है, बट दे आर सेइंग ये जो जाट में हो रहा है ना, ये अब तक नहीं देखा, ये सब पे एक्चुअली भारी होने वाला है। टॉक टू अस अबाउट दिस एंड दिस ब्रिलियंट कोलैबोरेशन सर। कोयल की आवाज़ से तो दिन शुरू होता है, और मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो सुबह सुबह आवाज़ सुनाई देती थी, इसे यूज़ कर लिया है, तो ये सुनाई देगी फिल्म में। थैंक यू सो मच सनी सर। मैं क्या बोलूँ, जिसकी फिल्म देखने के लिए सालों साल फिल्म दर फिल्म ब्लैक में टिकट खरीद के पूरा झुंड मेरा दोस्तों का सनी सर की फिल्म देखने जाता था, आज सनी सर के साथ ये फिल्म करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, और बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। एंड थैंक यू सो मच गोपी सर, ही सो, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, ही सो स्वीट, सो टैलेंटेड, एंड पेशेंस अलग लेवल का है गोपी सर का। थैंक यू सो मच। मैत्री, जिन्होंने धमाका मचा रखा है, पुष्पा 2, और लाइनअप ऐसा है कि क्या ही बोलूं, ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट जैसा लाइनअप है। एंड थैंक यू रवि सर, थैंक यू विश्वा सर, पीपल मीडिया फैक्ट्री, एंड थैंक यू सो मच नवीन अन्ना सर। बहुत ही सुंदर अनुभव था। प्रोड्यूसर्स वहाँ ऐसे आते हैं, पता ही नहीं चलता कि प्रोड्यूसर आ गए, एंड प्रोड्यूसर सेट पे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। या सो हम्बल, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रणदीप भाई, इस बार भाई ही बने हैं, इतना तो चलिए ओपन कर ही देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीत भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स सर, आपने लाइनअप की बात की मैत्री की, अभी वो प्रभास सर की फिल्म है, एनटीआर सर की और प्रशांत सर के संग, मतलब ये कहीं और ही जाने वाला है। एंड अभी कमिंग बैक टू जाट, मैं बोलूंगा मतलब लुकिंग बैड एस नेवर लुक्ड सो गुड। मतलब किसी ने इतना खूबसूरत और हैंडसम दिख के इतना खतरनाक विलन मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी वो अदा किया होगा। गिव इट अप फॉर दिस मैन हु इज दिस ब्रिलियंट हैंडसम एक्टर, एट द सेम टाइम अ वेरी डेयरिंग एक्टर। हर बार जो कैरेक्टर उठाते हैं ना, वो सच में हट के अलग होता है। सब लोग यहाँ पे हाँ हाँ ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रणदीप हुडा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर दिस मैन।